a large piece of cork is placed on the surface of water, what will happen? बुक जरूरत नहीं है, आप बुक ऐसे ही रख लो, बस अपसाइड डाउन कर दो, बोलेंगे तो बुक खोल लेना, फिगर आएगा तो बुक खोल लोगे आप। तो when a large piece of cork is placed on water, it floats. Simple. जानते हो? When we try to push the cork into water, we feel upward force. आप इसे ट्राई करोगे पुश कर दे, तो you will feel an upward force. ठीक है ना? If we still try to push it further down, we feel it difficult to push deeper and deeper. जैसे जैसे वो और डीप जाएगा ना, more force is required. It becomes difficult, है ना? पहले थोड़ा सा पुश करो, अंदर जाएगा, तो और अंदर जाएगा यदि, तो आपको लगेगा ना और डीप यदि वो सबमर्ज होता है तो और अपवर्ड फोर्स लगता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन which goes on increasing as the cork is pushed deeper till it is completely immersed. So when we release the applied force on the cork bounces back, it comes on the surface of water again, ठीक है ना? And floats in partly submerged condition. Some part of the cork will be inside water, some part will be outside water, and it will float. Simple. तो देखो इस cork के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? So there are two forces acting on the cork. The first one is weight of the cork. First one is weight of the cork. This force acts in the downward direction. Weight क्या है? Weight is a force by which, मना कर रहे हैं बुक देखने तुमको, मना कर रहे हैं, बुक बंद कर दो, वो बहुत नहीं मिलेगा तुमको, घर जाकर पढ़ा लो, अपसाइड डाउन कर दो। देखो two forces acts on the cork. The first one is weight of the cork. What is weight? Weight is a force by which earth attracts the body towards its center, है ना? तो weight is a force exerted by earth on the cork. It acts in the downward direction. Simple. So weight acts in downward direction. So the body is pulled downward. Body जो downward pull होता है वो due to weight of the cork होता है. Simple. दूसरा फोर्स है अपथ्रस्ट. एक फोर्स अपवर्ड, यहाँ पर एक फोर्स जो है ना एफबी कहते हैं, तो वाटर एक्सर्ट करेगा. द सेकंड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वाटर. द सेकंड वन फोर्स इज द वाटर आल्सो एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द कॉर्क. व्हेन द कॉर्क इज फुली सबमर्ज्ड, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द कॉर्क. देयरफॉर द कॉर्क comes on the surface of water, it bounces back. When the upward force on the cork is released, एक कॉर्क पूरा समझ, जिसे आप फोर्स हटाते हो ये बाउंस बैक ऊपर चला जाता है. इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द कॉर्क. करने से होता है. ठीक है ना? क्लियर बात? फिर से देख लो जरा एक बार. हमने क्या किया कि एक कॉर्क लिया और इसे प्लेस कर दो सिंपली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है? You will see that the cork is floating. Now apply a force on the cork in the downward direction. It goes deeper and deeper. You will feel that as the cork goes deeper and deeper, more force is required to keep it inside water. है ना? Clear हुआ? And when you release the force, the cork bounces this again upside on the surface of water. It some floats, but it floats in partly submerged condition, not fully submerged condition. Simple. तो cork के ऊपर क्या क्या फोर्सेस चेक कर रहा होगा? पहला तो फोर्स है वेट ऑफ द कॉर्क. दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द अर्थ. दिस फोर्स एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू सबमर्ज द कॉर्क, टू सिंक द कॉर्क. सिंपल. एंड द अदर फोर्स इज अप्लाइड बाय वाटर ऑन द कॉर्क. दिस फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू फ्लोट द कॉर्क ऑन वाटर. सिंपल. ठीक है? तो व्हेन द कॉर्क इज फुली सबमर्ज्ड, the upward force is greater than weight of the cork. क्या लिख रहे हो? लिखो नहीं कुछ, हमने जब नोट्स लिखना नहीं है. देखो when the, मेरी बात सुन ध्यान से आप. when the cork is fully submerged, the upward force on the cork is greater than weight of the cork. Therefore it comes on the surface of water when the external force is released. ठीक है ना? सपोज करो आप कि कॉर्क का वेट है 60 न्यूटन. कितना है? 60 न्यूटन वेट है. So this force is acting in the downward direction.
एंड अपथ्रस्ट ऑन द कॉर्ड एफ बी कहते हैं। अपथ्रस्ट ऑन द कॉर्ड ये है सपोज करो 90 न्यूटन, कितना है 90 न्यूटन, एंड दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स ऑन द कॉर्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा, कितना 30 न्यूटन होगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द कॉर्ड बाउंसेस बैक व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिलीज, है ना। टू कीप द कॉर्ड इनसाइड वाटर यू हैव टू exert an extra force of कितना, external force of 30 न्यूटन, 90 minus 60, 30 न्यूटन फोर्स अभी हम लगा रहे हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसको सिंक कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि किसी भी बॉडी को बता मिला आपको, टू कीप द कॉर्ड कंप्लीटली इमर्ज, ठीक है ना, क्या करना होगा आपको इसके लिए, बोलो, the upward force on the cord should be balanced। upward force कॉर्ड में क्या होगा, 60 न्यूटन वेट और 90 न्यूटन अपवर्ड फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आप, नहीं हुआ, तो आप कैसे इसे बैलेंस करोगे, बोलो, an external force of 30 newton in the downward direction should be applied on the cord, then the cord will suffer। बताओ, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड फोर्स एंड वेट ऑफ द कॉर्ड। द अपवर्ड फोर्स इज 90 न्यूटन, वेट ऑफ द कॉर्ड इज 60 न्यूटन, डिफरेंस इज 30 न्यूटन। तो सो यू हैव टू अप्लाई an external force of 30 newton in downward direction to keep the cord inside water, simple, to keep the cord fully submerged, okay, no doubt। तो इसका मतलब हुआ, इससे क्या आप क्या कंक्लूड करते हो कि whenever a body is immersed in a liquid it appears to lose some weight, है ना। इसे इसका वेट मान लो 60 न्यूटन है, आप थ्रेड से हाथ से पकड़े हुए हो ना, तो लग हल्का हो गया ये, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, इट अपीयर टू लूज सम वेट, ठीक है ना। माने द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट, सिंपल, and this is due to an upward force exerted by the liquid on the body, simple। तो अब कुछ टर्म्स है जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला तो ये है कि व्हाट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, तो अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on a body when it is immersed in the liquid, simple। what is upthrust, upthrust is the upward force exerted by a fluid on a body, fluid कहते हैं लिक्विड या गैस दोनों को, तो गैस भी अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, लेकिन गैस का मास कम होता है तो अपथ्रस्ट भी स्मॉल होता है, तो बात अलग हो गई, है ना। तो अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। इसका यूनिट क्या होगा, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, तो जो फोर्स का यूनिट है वो अपथ्रस्ट का यूनिट होगा, सिंपल। तो एस यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एस यूनिट क्या होगा, न्यूटन, है ना। सीजीएस यूनिट क्या कहते हैं, डाइन, फिर जीएफ भी हो सकता है, केजीएफ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, सिंपल। तो इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि द वेट ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस देन इट्स एक्चुअल वेट, ठीक है ना। आप किसी बॉडी को यदि सबमर्ज करते हो किसी फ्लूइड में, तो उसका एक्चुअल वेट जितना होगा उससे कम वेट लगेगा ना, लगेगा कि कुछ वेट कम हो गया, ऐसा लगेगा, ठीक है। देखो तुम गांव में भी, हालांकि वहां भी अब सिस्टम नहीं है, कुएं से लोग पानी खींचते हैं ना, बकेट हुआ करके रूप से, ठीक है। तो इट इज इजी टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बकेट। When the bucket starts coming out of the water surface, it becomes heavier and much more force is needed to pull it, to lift it, है ना। हुआ, तुम घर जाए कर सकते हो, बकेट ले लो, पूरा पानी से भरा हुआ है वो, फुल ऑफ वाटर, एक जग होता है ना, जग डुबा दो उसमें और जग को उठाओ, जब तक वो इनसाइड वाटर रहेगा उसको लिफ्ट करना आसान होगा, इजी होगा। जैसे ही वाटर सरफेस से ऊपर आएगा इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है ना। रीजन क्या है, जब वो वाटर के अंदर था तो उसको अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसका अपरेंट वेट क्या हुआ, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो अब अपरेंट वेट कम है ना एक्चुअल वेट से, ठीक है। देखो इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हेवी स्टोन अंडर वाटर देन इन एयर,
कोई स्टोन है, आप एयर में लिफ्ट कर रहे हो तो डिफिकल्ट है। अब वाटर में यदि वो स्टोन हो, वहां लिफ्ट तो आसान होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। कॉर्क का केस तो अलग है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द कॉर्क। लेकिन स्टोन के केस में अपथ्रस्ट उसके वेट से कम होगा, है ना, फिर भी उसके वेट, अपरेंट वेट को तो कम कर देगा ना, ठीक है, क्या होगा। We experience similar loss in weight when we swim. आप स्विमिंग करते हो, पानी के अंदर जब जाते हो तो थोड़ा हल्का हो गया है, ठीक है। चलो, कोई बड़ी सी फिश यदि हो, बड़ी सी मछली यदि हो, उसे पकड़ने के बाद उसको पानी में डुबा करके लाना आसान काम है ना, मनुष्य की पूरा ऊपर उठा के लाओ, ठीक है ना। A body weighs more in vacuum than in air due to obstruction of air on the body. यदि बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस का यूज किया जाए और वेट निकाला जाए तो किसी बॉडी का वेट वैक्यूम कंडीशन में ज्यादा होगा देन इन एयर। रीजन क्या है, एयर में बॉडी एयर को डिस्प्लेस करेगा ना, तो एयर का अपथ्रस्ट लगेगा वो बॉडी के ऊपर, तो उसके एक्चुअल वेट को कुछ कम कर देगा, ठीक है, हुआ। अब देखो अपथ्रस्ट का रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन फॉर अपथ्रस्ट लगता क्यों। सपोज करो आप, ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, और इसमें एक बॉडी है ना, बराबर। ऐसे बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर चढ़ पड़े हो ना, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। तो अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको याद होगा बताए थे कि लिक्विड प्रेशर कितना होता है, HdG, चाहे H रो जी। H है डेप्थ फ्री सरफेस से, D डेंसिटी है या रो डेंसिटी है, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो कि हम ये इस सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर लिक्विड है, मान लो ऐसे लिक्विड है, तो तुम यहाँ कंसीडर करो तो अभी H तो सेम है ना, डेप्थ तो सेम है, इसके भी डेप्थ सेम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम है, एट अ प्लेस G भी सेम होगा, तो प्रेशर सेम होगा ना। तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम रहेगा, तो डाउट इसमें नहीं आपको, ठीक है। तो a liquid contained in a vessel exerts pressure at all points in all directions. Pressure is same at all points on a horizontal level. इतना रूल आप पहले पढ़ चुके हो, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर, इनसाइड लिक्विड सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, है ना। देखो लिक्विड पे होता है HdG, चाहे H रो जी, हाइट फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, चाहे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम H हो गया, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सेम लेवल में लिक्विड का H तो सेम है, H सेम हो गया, हाइट सेम हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम है, और G भी सेम है, तो प्रेशर भी सेम है, ठीक है। तो सेम लेवल में सेम प्रेशर होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेशर हमेशा लगता है ना अगेंस्ट द वॉल, याद रहेगा, अगेंस्ट द वॉल। जैसे यहाँ प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड, प्रेशर यहाँ किसे लगेगा बोलो, ये प्रेशर होगा डाउनवर्ड, P1 प्रेशर होगा डाउनवर्ड, और यहाँ प्रेशर किसे होगा, अपवर्ड, P2 होगा अपवर्ड, ठीक है। साइड में प्रेशर भी होगा, यहाँ भी प्रेशर होगा और इधर भी प्रेशर है ना, ठीक है, क्या हुआ। तो देखो lateral pressure at a level of the liquid is equal in all direction, है ना। lateral pressure जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि सेम लेवल में है वो, ठीक है ना। so the net lateral pressure exerted by the liquid on the block at a given level of the liquid is zero। lateral pressure तो दूसरा बैलेंस कर लेगा ना, इस लेवल में जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इस लेवल में होगा, दोनों के लिए H सेम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम है, G सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा, और दूसरे का अगेंस्ट से लग रहा है तो बैलेंस कर लेगा, तो नेट प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो लैटरल प्रेशर तो जीरो हो जाएगा लिक्विड पे, क्लियर होगा इतना बात। अब देखो जरा, लिक्विड प्रेशर आप जानते हो इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड प्रेशर H इंक्रीज करे तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, तो ज्यादा डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और जो फ्री सरफेस के में भी कोई पॉइंट हो, अपर हो थोड़ा पॉइंट हो, लेस डेप्थ पे हो, तो वहां प्रेशर भी कम होगा, सिंपल, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, अपवर्ड प्रेशर P2 on the lower surface of the involved block will be greater than downward pressure P1 on the upper surface, because the upper surface is at a lower depth, at a smaller depth, and lower surface is at a larger greater depth, है ना।
तो P2 will be greater than P1, ठीक है हुआ, P2 will be greater than, विदाउट है, चलो विदाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जरा, तो hence there is an unbalanced upward pressure which causes unbalanced upward force on the body। तो प्रेशर तो अनबैलेंस हो गया, नेट प्रेशर क्या होगा, P2 minus P1, P2 minus P1 ये नेट प्रेशर होगा। P2 is greater than P1, P2 is greater than P1, क्यों, वाई, मान लो इसका डेप्थ है H1, ये डेप्थ है कहाँ, H1 डेप्थ पे है, दिस डेप्थ इज H1 सपोज करो आप, है ना, एंड दिस डेप्थ इज H2, तो H2 is greater than H1, H2 is greater than H1, therefore P2 will be greater than P1, so upward pressure will be greater than downward pressure, है ना, ठीक है। तो प्रेशर इनटू एरिया थ्रस्ट होता है, पढ़े हो ना, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया, है ना। तो थ्रस्ट क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो दोनों में एरिया तो सेम है, एरिया को इतना है, वहां यहाँ सेम एरिया दोनों है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो थ्रस्ट एक्ट करेगा डाउनवर्ड F वो स्मॉलर होगा, F2 जो थ्रस्ट होगा वो लार्जर होगा, ठीक है। तो नेट थ्रस्ट किधर होगा, अपवर्ड होगा ना, ठीक है, यही रीजन है अपथ्रस्ट होगा, ठीक है। Hence there is unbalanced upward pressure, P2 minus P1 क्या है, unbalanced pressure है जो कि अपवर्ड लग रहा है, which causes upward force, which causes unbalanced upward force on the bottom of the immersed body. This unbalanced force causes upthrust, simple, this unbalanced force causes, क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप किसी बॉडी को यदि सबमर्ज करते हो किसी फ्लूइड में, तो लैटरल प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, सेम लेवल सेम प्रेशर, बट अपर सरफेस ऑफ लिक्विड इज एट अ लोअर डेप्थ एंड लोअर सरफेस ऑफ द लिक्विड इज एट अ ग्रेटर डेप्थ, है ना। तो प्रेशर ऑन द अपर सरफेस विल बी स्मॉलर एंड प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस विल बी लार्जर। अपर सरफेस का प्रेशर होगा डाउनवर्ड और लोअर सरफेस का प्रेशर होगा अपवर्ड, तो अपवर्ड प्रेशर विल बी ग्रेटर देन डाउनवर्ड प्रेशर, है ना, क्लियर हो गया। तो नेट प्रेशर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट प्रेशर को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा नेट थ्रस्ट, तो नेट फोर्स या थ्रस्ट किधर होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है ना। और यही रीजन है अपथ्रस्ट। कंसीडर अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक, सिलिंड्रिकल ब्लॉक, वाटर के अंदर में आप इमेजिन करो कि एक ब्लॉक है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, PQRS, सिलिंडर समझते हो ना, सिलिंडर जैसा ब्लॉक है ना, PQRS, PQRS, है ना, विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ H। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये A है और इसका लेंथ H है। ब्लॉक इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, रो भी तुम्हारे बुक में दिया है, हम D लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, D, है ना। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज D and the block is immersed in the liquid. The upper surface कौन है इसका, PQ है, देख रहे हो ना। The upper surface PQ of the block is at a depth H1, है ना। upper surface का डेप्थ कितना है, H1 है, from free surface of liquid, ठीक है ना, ठीक है। and lower surface SR is at a depth H2, सिंपल, ठीक है। from the free surface of the liquid, from the free surface of the liquid, consider a cylindrical vessel PQRS immersed in a liquid having density D. The upper surface is PQ and the lower surface is SR.
द अपर सरफेस PQ इज एट अ डेप्थ H1, है ना, एंड द लोअर सरफेस SR इज एट डेप्थ H2 फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। PQ सरफेस पे प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड, अगेंस्ट द वॉल लगता है ना, तो यदि ऐसे है तो ऐसे डाउनवर्ड रहेगा ना, अगेंस्ट द वॉल, बॉटम पे लगेगा अपवर्ड, टॉप पे डाउनवर्ड। क्या हो गया? तो डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द सरफेस PQ देखते हैं क्या होगा। डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द सरफेस PQ, है ना, क्या होगा? देखो आपको पता है P1 लिखे हुए हम कि P1 है ये, तो P1 क्या होगा? HDG, ये होता है। तो H1 लेंगे यहाँ पर, H1 क्या है? डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। PQ सरफेस का डेप्थ है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। सिंपल। D हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सीधे है H D एंड G, H1DG। सिंपल, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड थ्रस्ट क्या होगा? डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द सरफेस PQ, है ना। डाउनवर्ड थ्रस्ट होगा, मान लो कि F1 लिख रहे हैं इसको हम, थ्रस्ट को हमने F1, तो थ्रस्ट होता है एरिया इंटू प्रेशर, जानते हो आप, है ना। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया प्रेशर होता है, पढ़े हो ना, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू ए, तीन होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? A H1DG, क्या होगा? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, और एक बात की, अपवर्ड प्रेशर क्या होगा सब, है ना। अपवर्ड प्रेशर ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ ये जानना चाहिए आपको, है ना। तो अपवर्ड प्रेशर ऑन द सरफेस SR, SR सरफेस से प्रेशर अपवर्ड होगा ना, तो अपवर्ड प्रेशर ऑन सरफेस SR ये क्या होगा? P2 है, ये है P2, और ये कितना होगा? H2DG। सिंपल, H2 क्या है? SR सरफेस का डेप्थ है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से H2, D है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, H2DG। कोई डाउट नहीं है? बोलो। तो अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द सरफेस SR क्या होगा? F2, ये होगा कितना? एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। तो एरिया तो दोनों में सेम है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो जितना एरिया ए यहाँ पर है उतना ही एरिया ए यहाँ पर भी है, क्या हो गया ना, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है? वो कोई प्रॉब्लम है? बेशक बोलना, कहीं कोई दिक्कत हो बेशक बोलोगे, ठीक है ना, ठीक है। और इसे तो कॉपी कर रहे हो ना, इसे कॉपी करके चलना। तो देखो आप, तो F2 होगा P2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? A H2DG। सिंपल, ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, अब एक बात ध्यान दो जरा कि हमने ये निकाला कि अपवर्ड थ्रस्ट ये है ना, ये है अपवर्ड थ्रस्ट और ये है डाउनवर्ड थ्रस्ट, है ना। तो अपवर्ड थ्रस्ट ग्रेटर है कि डाउनवर्ड थ्रस्ट ग्रेटर है? ज्यादा कौन है बताओ? ज्यादा है, क्यों? क्योंकि H2 इसमें आया है ना, देखो देखो दोनों में, ये है A H1DG, ये है A H2DG, तो H1 और H2 डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो सिंस H2 is greater than H1, therefore F2 will be greater than F1। सिंपल, है ना, ठीक है ना। Therefore the block will experience a net upward force. The block will experience a net upward force, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं ना, ठीक है।
नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स, अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स, है ना, कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स। ठीक है, सिंबल यूज करते हैं क्या इसके लिए हम लोग, एफ बी, क्या यूज करते हैं, एफ बी, द सिंबल यूज इज एफ बी। तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, है ना, ये होगा F2 माइनस F1, कितना होगा, F2 माइनस F1, ये ना होगा। ठीक है, हम इसे FB कहते हैं, क्या बोलते हैं, FB, बुआंसी के लिए भी यूज किया है, FB होगा F2 माइनस F1, सिंपल। अच्छा ये होगा F2 कितना था याद है, बोलो, AH2BG, है ना, और माइनस AH1BG, ये ना था। ठीक है, बोलो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि A कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और BG भी कॉमन ले लेते हैं यार, तो क्या बचेगा, H2 माइनस H1 इंटू डीजी। ठीक है, ये यहाँ डीजी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, H2 माइनस H1। ठीक है, और H2 माइनस H1 क्या है, देखो ये यहां से लेके फ्री सरफेस से बॉटम तक का H2 है डेप्थ, और टॉप वाले का सरफेस का डेप्थ H1 है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक निकल जाएगा, सिंपल ब्लॉक। ठीक है, वो कितना था, H था, देखो लिखे हुए है ना ऊपर में, पढ़ लो एक बार, a cylindrical block PQRS with area cross section A and length H, लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो therefore FB कितना होगा, AHBG होगा ना, AHBG याद रहेगा, AHBG। ठीक है, और याद रखना आप, कोई भी बॉडी हो जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, एनी बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, उसके लिए वॉल्यूम होता है हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ इनटू लेंथ। अब सबको पता है ना, ये रूम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, LBH, ये ना होगा। तो देखो यहाँ ये मान लो क्रॉस सेक्शन है, तो ये हो गया हाइट H इंटू बी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो इंटू L, तो हो गया ना LBH। तुम इस वॉल को मान लो कि यही क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे, कितना होगा, देखो L इंटू H, तो लेंथ तो B हो गया बराबर है ना, तो L इंटू H इंटू बी, LBH आ गया। ऐसे ही ये भी क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म हो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, हो गया ना। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो A इंटू H क्या है, V है, तो क्या होगा, VDG, VDG होगा ना। ठीक है, बोलो, यहाँ पे आप लिख दोगे दो बातें, H है H2 माइनस H1, पहली बात, और दूसरी बात V इज इक्वल टू A इंटू H, है ना, V इज इक्वल टू A इंटू H। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं, सिंपल। बोलिए, विदाउट। अच्छा डेंसिटी पढ़े थे ना, याद होगा, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, याद है, मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के लिए मास पा सकते हैं ना, तो कितना होगा, m इंटू जी, ठीक है ना, m होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, आपको याद है ना, वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी, याद है, वेट इज ए फोर्स, अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, वेट कब कहते हैं, जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स लगे, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स जब लगता है ना, तो एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m इंटू ए की जगह क्या होगा, m इंटू जी, तो इस m इंटू जी की जगह हम क्या कर देंगे, वेट कर देंगे ना, m इंटू जी तो वेट कहते हैं, तो ये हो जाएगा वेट। ठीक है,
वेट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्या हो गया ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना इसका पार्ट इनसाइड है उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया, यह डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो तीनों से क्या देगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ना। तो ये आपको प्रूफ हो गया कि अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सिंपल, अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कोई डाउट? सिंबल्स जो यूज हुआ है क्या क्या है, देखो जरा एक बार। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। M है मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्चुअली, है ना। और वेट हो गया वेट ऑफ द, W है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब क्या कहोगे कि अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड इट विल बी इक्वल टू VdG, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G। और एक बात ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमेशा होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड, हाँ, जितना बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड होगा उतना ही ना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो, सिंपल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा कर दे। तो अपथ्रस्ट हो गया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, क्लियर हो गया, याद रहेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, सिंपल। अपथ्रस्ट के सिंबल क्या यूज करते हो आप, ये बच्चा ऐसा ही सोच इज इक्वल टू V in, FB इज इक्वल टू V in DL into G, ऐसे लिखते हैं एक बार, ठीक है। V in क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, V in हो गया, समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, V in क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी inside the liquid, inside the liquid, simple। V in क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, है ना। और ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सिंपल। जितना बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, सिंपल, ठीक है। DL क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, DL है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अपथ्रस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहली बात तो यह है कि अपथ्रस्ट acts vertically upward, upthrust acts vertically upward through the center of gravity of displaced liquid, याद रहेगा ना, किसी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका सेंटर ग्रेविटी मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ बैलेंस रखो तो बैलेंस हो जाएगा ना। होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स थ्रू अ पॉइंट, ऐसा इमेजिन करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपथ्रस्ट एक्ट करता है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बुआयंसी कहते हैं, सिंपल। और अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द बॉडी, मास, साइज, डेंसिटी, इस पर अपथ्रस्ट डिपेंड नहीं करेगा। बॉडी का मास क्या है इससे अपथ्रस्ट को मतलब नहीं है, अपथ्रस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। बॉडी का शेप साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, उस पर अपथ्रस्ट डिपेंड नहीं करेगा। अपथ्रस्ट डिपेंड करेगा किस फैक्टर पर, सिंपली वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, सिंपल।